and allosteric site when the enzyme is going to bind with, let's say, uh, drug, and it is going to change its orientation so that the substrate is no longer recognized. So that is going to be allosteric site. Then antagonist and agonist type, that is receptor में जो block करेगा वो antagonist, ठीक है, and who is going to mimic the same, let's say, response like receptor, that is agonist type. Then we are having, let's say, names of a drug. So antacids are having ranitidine, cimetidine, है ना, cimetidine is Tegamet, ranitidine is going to be Zentek, ठीक है. So we have seen those drugs name. This is going to be antihistamine in case of, and normal, let's say, for symptoms we are having metal hydroxides, right? ALOH whole thrice, MgOH whole twice, like that. Yeah. Next is, let's say, just for antihistamine, that for allergic response or another thing, let's say, so bromophenramine, Demetep, and terfenadine, Seldane, okay? And then we are having a whole class of, let's say, tranquilizer where Epronazid and Equanil and chlorodiazepoxide, ये सब, right? You have to remember phenelzine, meprovimate. तो जितनी बार रिवाइज करोगे उतनी बार जल्दी याद होगा. फिर हमने बार्बिट्यूरिक एसिड की बात की थी, उसमें ये अल वाले बेरोनल, लेमाइटल, नेम्बोटल, लुमिनल, सेक्रोनल, ये सब आ गए, ठीक है. Now I'll talk about analgesic. Okay. So analgesic is when we have to reduce or abolish pain. Analgesic painkiller है ना. This is going to be painkiller. Without causing impairment of consciousness, mental confusion, incoordinate and paralysis or some other disturbance of nervous system. तो देखो पेन रिलेटेड किससे, नर्वस सिस्टम से. तो ये और कुछ मतलब नर्वस सिस्टम को डैमेज नहीं कर रहा है, ठीक है. दैट इज एनाल्जेसिक. इसमें दो तरह की हैं, नॉन नार्कोटिक एंड नार्कोटिक ड्रग, ठीक है. नॉन नार्कोटिक ड्रग में सबसे फेमस है एस्पिरिन एंड पैरासिटामोल, है ना. एस्पिरिन एंड पैरासिटामोल आप लिखा होगा, राइट. So aspirin and paracetamol belongs to this class of non-narcotic drug. So aspirin का स्ट्रक्चर तो हम सबको पता है ना. एस्पिरिन का स्ट्रक्चर सैलिसाइलिक एसिड से बनता है. ये अगर OH ग्रुप जो है वो हमारा एस्टर फॉर्म बना ले, this is going to be COOH. So this is aspirin. एंड पैरासिटामोल का स्ट्रक्चर होता है, अगर हम यहाँ पे OCOCH3 की जगह NHCOCH3 लगाते हैं, एंड इसकी पैरा पोजीशन पे OH लगाते हैं, दिस इज पैरासिटामोल, ठीक है. तो ऑब्वियसली ये बहुत आसान स्ट्रक्चर्स हैं, उनके कंपैरिजन में अदर्स तो ये याद हो जाएंगे, है ना. एस्पिरिन तो सैलिसाइलिक एसिड से याद हो जाएगा, और इससे इसको आप रिलेट कर लेना. यहाँ पे OCOCH3 है, यहाँ NHCOCH3 है. सो दीज आर द, लेट्स से, स्ट्रक्चर. अब बात करते हैं क्या लिखा है यहाँ पे. तो एस्पिरिन एंड पैरासिटामोल बिलोंग्स टू दिस क्लास ऑफ नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक. Aspirin is most familiar example. Aspirin inhibit the synthesis of chemical known as prostaglandin, है ना. Prostaglandins, which stimulate inflammation in the tissue and cause pain. तो ये याद रखना है. जैसे हमने देखा था नॉरएड्रेनालिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूड चेंज, है ना. अगर वो डिग्रेड हो जाए नॉरएड्रेनालिन तो फिर वहाँ मूड चेंज होने लगता है. So that's why this Epronazid and let's say Equanil, all other are going to, है ना, they are going to work on or
work on the enzymes which are degrading the level of noradrenaline. Similarly यहाँ पे याद रखना ये है ना, ये है prostaglandin which stimulate the inflammation in tissue and cause pain. These drugs are effective in relieving. तो इसका एक समरी बनाते रहना है ना, समरी नोट्स, उसमें important points लिखते रहना. Which stimulate inflammation in the tissue and cause pain. These drugs are effective in relieving skeleton pain. ठीक है, such that arthritis. ठीक है, तो जो हमारी बोन से रिलेटेड पेन है उसमें ये फायदा करेगा. ठीक है. There are many other effects such as reducing. अच्छा हाँ, these drugs have many other effects such as reducing fever. ये हम जानते हैं, एंटीबायोटिक पर्पस के लिए पैरासीटामोल. ठीक है, ये सब लिया जाता है. एंड प्रिवेंटिंग प्लेटलेट कोगुलेशन. प्लेटलेट कोगुलेशन का मतलब क्या है, कहीं पे ये है ना, कोगुलेशन तो आपने पढ़ा है, सर्फेस केमिस्ट्री में आया होगा ये टर्म. तो दिस इज गोइंग टू, जैसे प्रेसिपिटेट बनाना है ना, तो सारी प्लेटलेट मिलके एक बड़े सा है ना प्रेसिपिटेट टाइप बना लें वो. तो प्रिवेंटिंग प्लेटलेट कोगुलेशन. ठीक है, तो फायदा ये है कि जिनको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है उनके लिए ठीक है ये, लेकिन जैसे कहीं कट गया है और आपने लिया तो फिर वहां पे जल्दी से कोगुलेशन नहीं होगा. सो दैट्स व्हाई आपका मतलब खून रिलेटिवली ज्यादा देर तक निकलेगा. दिस इज प्रिवेंटिंग प्लेटलेट कोगुलेशन बिकॉज ऑफ इट्स एंटी ब्लड क्लॉटिंग एक्शन. ठीक है, एस्पिरिन फाइंड यूज इन प्रिवेंशन ऑफ हार्ट अटैक्स. ठीक है, चलो एनीवे. नार्कोटिक ड्रग है ना, किसी ने मुझसे पूछा था सर ये किसके कहाँ आते हैं ना, तो ये देख लो, हेरोइन, मॉर्फिन है ना, कोडीन, ये सब आ गए यहाँ पे. तो मॉर्फिन एंड मेनी ऑफ इट्स होमोलॉगस when administered in medical doses relieve pain and produce sleep. ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो तो इन तीनों में ये जो 4 रिंग्स हैं आपस में है ना, ये और इसके ऊपर एक जो ये रिंग आ रही है NCH3 वाली, सब सेम है. जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है यहाँ ग्रुप जो अटैच है. तो ये याद रखना बहुत आसान हो जाएगा. अगर OH ग्रुप दोनों तरफ है तो ये हो जाएगा मॉर्फिन. अगर मान लो OAC ग्रुप है, मतलब CH3COO है ना, CH3COO ग्रुप है, राइट, OAC, या फिर और यू कैन राइट OAC. So this is going to be heroin. एंड कोडीन में थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, एक जगह OH है और एक जगह OCH3 है. OH and OCH3, then this is कोडीन. तो अच्छी बात यह है कि इसको याद करना आसान है, राइट. जब भी ऐसा कोई स्ट्रक्चर होगा 4-5 रिंग बनी होंगी और ये आपका 5 मेंबर्ड ऑक्सीजन के साथ है ना, ये तो क्या हो गया, ये है ना THF टाइप है ना, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन. तो फ्यूरॉन टाइप है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ नहीं है लेकिन. ठीक है, तो वैसे आप याद रख सकते हो. ओके, एनीवे, so these are also, let's say, relieve pain, produce sleep. In poisonous doses these produces stupor, coma, convulsion and ultimately death, you know, possible a drug overdose, right. Morphine narcotics are sometimes referred to opiates, है ना, ये ओपियम पॉपी से बनते हैं इसलिए, since they are obtained from opium poppy. ठीक है, so these analgesics are chiefly used for relief of, अब कहाँ यूज होते हैं, रिलीफ ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव पेन, है ना. पोस्ट ऑपरेटिव पेन मतलब आफ्टर ऑपरेशन, राइट. कार्डियक पेन, पेन ऑफ टर्मिनल कैंसर एंड चाइल्ड डेथ, मतलब सेवियर पेन, आप समझ सकते हो. तो ये वहां पे यूज किए जाते हैं और थोड़ी मतलब आपको देखें फिर. ओके, so they are find these application these drugs are finding application at that place. हाँ, एक मिनट. टर्मिनल कैंसर मतलब 4th ग्रेड 3rd ग्रेड कैंसर, मतलब बचने वाला आदमी नहीं है, थोड़ा लगेगा टाइम, उसमें दर्द होता है. थर्ड एंड फोर्थ स्टेज, सॉरी नॉट ग्रेड. तो डिजीज, अच्छा अब बात करते हैं
एंटी माइक्रोबियल्स, ठीक है। तो माइक्रोब से आप समझ में आ रहा है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। एनीवे, disease in human beings and animal may be caused by a variety of microorganisms such as bacteria, virus, fungi and other pathogens, है ना। अभी देखो कोविड चल रहा है, ये वायरस है, राइट। An antimicrobial tends to destroy and prevent development of or inhibit the pathogen action of microbes such as bacteria, bacteria होगा तो anti bacterial drug बोलेंगे, fungi then antifungal agents, virus then antiviral agents, है ना, राइट। और अदर पैरासाइट एंटी पैरासिटिक ड्रग। तो वायरस को तो हम किल नहीं कर सकते, राइट। सो दैट्स व्हाई वायरस को किल करने के लिए अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी पड़ती है, राइट। बैक्टीरिया कैन बी किल्ड, एंटी बैक्टीरियल, ठीक है। और अदर पैरासाइट एंटी पैरासिटिक ड्रग्स सेलेक्टिवली, एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट्स आर एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स। तो अब इन्होंने यहाँ पे बात की है ना एंटीबायोटिक की, एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। वी विल सी द यूजेस, है ना। एंटीबायोटिक इनर, मतलब आपको बॉडी में लेना है, एंटीसेप्टिक बाहर लगाना, आउटर बॉडी में लगाना है, डिसइंफेक्टेंट आपके फ्लोर वगैरह पे लगाना है ना। we are going to see this part, okay। now we'll talk about antibiotic first। antibiotics are used as है यार, देखो लैब में बहुत मतलब स्टडी होती है पहले कि ड्रग पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। पहले तो वो एक्चुअली चेक करते हैं जो वायरस है या जो भी है उसमें कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं, क्या केमिस्ट्री है उधर, है ना, राइट। ठीक है, अगर देखा जाए तो एवरीवन इज लेट्स से, है ना, तो वो उनको पता होता है कि उस तरह से कैसे डिसॉल्व हो सकता है, कैसे ब्रेक हो सकता है ना। जो भी हम सब जानते हैं ना, वी ऑल आर केमिस्ट्री, राइट। हम सब किसी ना किसी, जैसे कार्बन हमारी बॉडी में है, राइट। सो सिमिलरली लेट्स से वी आर चेकिंग द स्ट्रक्चर फर्स्ट, वी अंडरस्टैंड दैट कि उनमें कौन कौन से ग्रुप्स लगे हैं, क्या स्ट्रक्चर बन रहा है, कैसा है, जो भी वायरसेस हैं, राइट। एंड देन वी वर्क ऑन कि बैक्टीरिया जो भी है उस पर कैसे, कौन सा किसको डिस्ट्रॉय कर सकता है या फिर उनका स्ट्रक्चर चेंज कर दे। सो दैट्स व्हाट हैपेंस, राइट। तो टाइम लगता है यार, टाइम लग रहा है अभी। और अभी तो कोविड वाले केस में तो बहुत सारे एक्चुअली म्यूटेशन भी हो रहे हैं, तो मतलब देयर इज अ सीरीज ऑफ लेट्स से वायरस। तो इसलिए कोविड थोड़ा सा डिफिकल्ट है। चलते हैं आगे। Antibiotics are used as drugs to treat infection because of their low toxicity for humans and animal। एंटीबायोटिक क्या होते हैं, जो आपके वायरस, बैक्टीरिया, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको किल करें और ह्यूमंस को मतलब साइड इफेक्ट ना हो, तो टॉक्सिटी फॉर ह्यूमंस एंड एनिमल। इनिशियली antibiotics were classified as a chemical substance produced by microorganisms, bacteria, fungi and molds that inhibit the growth or even destroy microorganism, है ना, राइट। तो वो जो हमने कहावत सुनी है ना, विष विष को काटता है ना, जहर जहर को काटता है, ऐसे समझ लो। तो वैसा ही है। तो इनिशियली थॉट वाज कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करेंगे, राइट। द डेवलपमेंट ऑफ सिंथेटिक methods has helped in synthesizing some of the compounds so the development of synthetic methods has helped in synthesizing some of the compounds that were originally discovered as product of microorganism। but ये शुरुआत की definition है, ठीक है, कि शुरुआत में ऐसा हुआ कि हमने we have developed some compound from microorganism and some purely synthetic compound have antibacterial activity। यहाँ पे फिर बोला है सिंथेटिक कंपाउंड्स, मतलब फिर देखा गया कि जो हम मैन मेड बना रहे हैं उनमें भी एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी है एंड देयरफॉर डेफिनेशन ऑफ एंटीबायोटिक हैज बीन मॉडिफाइड। तो पहले क्या थी,
पहले केवल और केवल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बना रहे थे, अब बोल रहे हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अलावा हम पार्टली जैसे मान लो सिंथेटिक कर सकते हैं, होली सिंथेटिक भी कर सकते हैं, which are going to kill them, let's say, or arrest the growth of microorganisms. An antibiotic now refers to a substance produced wholly or partly by chemical synthesis, which in low concentration inhibit the growth and or destroy microorganisms by intervening in their metabolic process. ठीक है. सर्च फॉर केमिकल, अब थोड़ी सी ये हिस्ट्री है, पहले तो ये डेफिनेशन उन्होंने समझाई, अब ये हिस्ट्री है कि क्या हुआ पहले. द सर्च ऑफ केमिकल दैट वुड एडवर्सली अफेक्ट इन्वेडिंग बैक्टीरिया but not the host began in 19th century. Paul Ehrlich, a German bacteriologist, conceived this idea. He investigated arsenic-based structure in order to produce less toxic substance for the treatment of syphilis. ठीक है, तो syphilis यहाँ पे एक बीमारी है, right? He developed the medicine arsphenamine, known as Salvarsan. ठीक है. Paul Ehrlich got Nobel Prize for Medicine in 1908 for discovery. It was first effective treatment discovered for syphilis. Although ना ये ट्रांसमिटेड डिसीज होती है एक्चुअली, ठीक है, तो आसानी से फैल जाती है इसलिए. Although Salvarsan is toxic to human being, its effect on bacteria, Spirochete, which causes syphilis, is much greater than the human being. At the same time, तो पहले क्या बात बताई इन्होंने कि ये फर्स्ट कहां से स्टार्ट हुआ, आर्सफेनरामाइन और यू कैन से सल्वर्सन, दैट इज फॉर syphilis. At the same time, Ehrlich was working on azodize and he noted that there is a similarity in structure of salvarsan and azodize. तो सल्वर्सन ये है. अब आपको याद क्या रखना है इसमें, एजोडाई आपने अभी देखा हुआ है ना, दो नाइट्रोजन ऐसे बेंजीन रिंग है, उनके बीच में नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड है, तो यहाँ आर्सेनिक आर्सेनिक के बीच में है. बाकी ये फंक्शनल ग्रुप नहीं भी याद रखोगे चलेगा, थोड़ा आइडिया आपको रहेगा कि अच्छा ये सल्वर्सन ऐसा कुछ है, आर्सेनिक रहता है. ठीक है, तो इन्होंने एजोडाइज देखा, उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, सिमिलर स्ट्रक्चर आ रहा है, तो यहाँ पे भी है ना, यहाँ पे भी हम कुछ देख सकते हैं, विच इज गोइंग टू किल लेट्स से बैक्टीरिया. नाउ the AS linkage, arsenic linkage present in arsphenamine resembles NL linkage present in azodize in a sense that arsenic atom present in place of nitrogen. So arsenic is present at the place of nitrogen. He also noted that tissue getting colored by dyes selectivity. So if he has worked let's say some experiment, उसमें इसने देखा कि dyes how they are let's say working, तो ये gel up हो रहे हैं tissues के साथ, उसको color दे रहे हैं, right? Therefore, Ulrich began to search for the compound which resembles in the structure to azodize and selectively bind to bacteria. In 1932, he succeeded in preparing first effective antibacterial agent, Prontosil. ठीक है, तो ये important हो गया, Prontosil first antibacterial agent और drug आ गई, which resembles in structure to compound Salvarsan. Soon it was discovered that in body, Prontosil is converted to compound called sulfanilamide. मैंने बोला था sulfanylic acid बताया था, right? I have told you this. So sulfanylic acid is like this. तो इसका amide अगर हम बना लेंगे तो this is going to be sulfanilamide, which is real active compound. तो इन्होंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, यहाँ पे ओके, NH2 SO2 NH2 अमाइड बन गया यहाँ पे सल्फेनिलमाइड. ये कैसे बन रहा है, ये अगर आप ये बॉडी में ये ब्रेक हो जाएगी यहाँ से प्रोटोसिल, ये यहाँ पे NH2 और ये SO2 NH2 बन जाएगा. Then what we have done, we have identified a whole range of new drugs which are going to be let's say similar to this structure, related to this structure. इनको बोलते हैं सल्फा ड्रग्स. So you can see
अगर SO2 NH2 में यहाँ NH की जगह ये हमने एक और यहाँ पे रिंग लगा दी है ना, pyridine रिंग, तो दिस इज गोइंग टू बी सल्फा पायरिडीन, है ना, ये नया ड्रग बन गया. ओके, सो दिस इज व्हाट इज which is real active compound, thus the sulfur drugs were discovered. A large range of sulfonamide analogs was synthesized. One of the most effective is sulfapyridine. ठीक है, तो यहाँ पे याद क्या रखना है, सल्वर्सन, ठीक है, that is arsphenamide, and then we have to remember bacteria name is Spirochete. Then we have to remember that is Prontosil, which is similar to arsphenamide, and from there sulfanilamide compound, from there sulfur drugs and sulfapyridine. ठीक. Despite the success of sulfonamides, the real revolution in antibacterial therapy began with the discovery of Alexander Fleming in 1929. है ना, ये आपको पता है, very famous, of antibacterial property of Penicillium fungus, है ना. So isolation and purification of active compound to accumulate sufficient material for clinical trials took 13 years. So he has actually extensively worked on this let's say fungi, और फिर वहां से ये इन्होंने निकाला ये कंपाउंड. नाउ एंटीबायोटिक तो हमें पता है पेनिसिलिन, अब हम नाम सुना हुआ है ना, ये देखेंगे पेनिसिलिन जी, राइट. एंटीबायोटिक हैव आइदर साइडल, है ना, साइड मतलब होता है किलिंग, है ना, साइडल इफेक्ट, सुसाइड, है ना, साइड, जेनोसाइड, राइट, साइडल इफेक्ट, और स्टैटिक इनहिबिटरी इफेक्ट ऑन माइक्रोब्स. स्टैटिक का मतलब क्या है कि ये ग्रोथ को रोकेगा, और यहाँ पे ये क्या है, इसको किल करेगा, ठीक है, एंटीबायोटिक. तो ग्रोथ को रोकेगा तो भी ठीक रहता है ना, ग्रोथ को रोकेगा, फिर बाद में आपकी इम्यूनिटी टेक केयर कर लेगी, ये स्टैटिक इफेक्ट है. Antibiotic have either sidal effect or static inhibitory effect on microbes. A few examples of two type of antibiotics are as follows. ठीक है, तो bactericidal and bacteriostatic. उसमें आपने कुछ नाम सुने होंगे, जैसे बैक्टीरियोसाइडल में हमने सुना है पेनिसिलिन, अमाइनोग्लाइकोसाइड एंड ऑफ्लॉक्सिन. ऑफ्लॉक्सिन आपने देखा होगा ड्रग्स में जो आप ले रहे हो उनमें ये कॉमन नेम है. एरिथ्रोमाइसिन, ये आपने जनरली देखा होगा जब कोल्ड कफ यूज होता है तब ये एरिथ्रोमाइसिन वाले ड्रग लेते हैं, ठीक है. बैक्टीरियोस्टैटिक, एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लाइन एंड क्लोरोएम्फेनिकॉल, ठीक है. तो कुछ नाम याद रह जाएंगे, पेनिसिलिन, ऑफ्लॉक्सिन एंड अमाइनोग्लाइकोसाइड. दीज आर गोइंग टू बी बैक्टीरियोसाइडल, एंड बैक्टीरियोस्टैटिक इज एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लाइन एंड क्लोरोएम्फेनिकॉल. नाउ द रेंज ऑफ, अब ये बता रहे कैसे हम ये ड्रग्स को, एंटीबायोटिक्स को मतलब करेक्टराइज कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाउ दे आर गोइंग टू अफेक्ट बैक्टीरिया. तो दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव. तो सबको अगर किल कर देगा देन वी आर गोइंग टू से ब्रॉड स्पेक्ट्रम. सेलेक्टिवली तो ग्राम पॉजिटिव को किल करेगा या ग्राम नेगेटिव को किल करेगा, देन वी आर गोइंग टू से दैट इज गोइंग टू नैरो, ब्रॉड, नैरो. और कोई पर्टिकुलर लेट्स से पर्टिकुलर बैक्टीरिया को किल करेगा तो उसको बोलेंगे लिमिटेड स्पेक्ट्रम. तो यही बातें यहाँ लिखी हैं. The range of bacteria or other microorganisms that are affected by a certain antibiotic is expressed as its spectrum of action. Antibiotics which kill or inhibit a wide range of gram-positive and gram-negative bacteria are said to be broad-spectrum antibiotics. And those effective mainly against gram-positive and gram-negative bacteria are narrow-spectrum antibiotics. ठीक है. If effective against a single organism or disease, they are referred to limited spectrum antibiotic. अब फिर लिखा है penicillin G has a narrow spectrum, ठीक है. Ampicillin and amoxicillin are synthetic modification of penicillin and these have broad spectrum. तो penicillin G narrow spectrum, फिर इन्होंने modify किया. Ampicillin and amoxicillin, these are having broad spectrum. It is
absolutely essential to test the patient for sensitivity allergy to penicillin before it is administered. In India, penicillin is manufactured at Hindustan Antibiotic in Pimpri and in private sector industry. So we have seen broad, narrow, and limited. Penicillin G is going to be narrow, and ampicillin and amoxicillin is going to be broad spectrum. नाम क्या क्या है याद रखना है. Bactericidal is going to be penicillin, then aminoglycosides, and then we are going to have afloxacin. And we are having bacteriostatic is erythromycin, chloroamphenicol, and tetracycline. ये याद रखना है नाम. नेम्स इंपॉर्टेंट है. अगेन मैंने बोला है कि डिफिकल्ट है, लेकिन 2-4 बार ऐसे पढ़ते रहोगे, इसीलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, सो दैट यू कैन ऑल्सो लेट्स सी. तो ये एक तो ये हो गए. फिर ऊपर हमने क्या क्या पढ़ा था. सल्वर्सन हमने पढ़ा था. आर्सफेनामाइन it's going to be drug for syphilis, so our bacteria name is Spirochete. And then we are going to have another, let's say, class which is similar to, let's say, artemisinin, that is protonil, and that is going to break into sulfanilamide, and that's why sulfur drugs have been, let's say, produced, and sulfapyridine is one of them. इससे पहले हमने देखा analgesics में paracetamol and aspirin, and we have seen narcotic drugs में heroin, morphine and codeine. हेरोइन, मॉर्फिन एंड कोडीन में हमने स्ट्रक्चर में सिमिलरिटी देखी थी. तो अगर OH OH होगा तो फिर वहां पे क्या होगा. मॉर्फिन होगा. अगर OAC होगा तो फिर OAC अगर ग्रुप लगा होगा तो फिर हमारा हेरोइन होगा. कोडीन में OCH3 एंड OH ग्रुप होगा. बार बार देखते जाओ, बार बार जितनी बार रिवाइज करोगे उतना अच्छा है. एनीवे, क्लोरोएम्फेनिकॉल इज आइसोलेटेड इन अदर ड्रग के बारे में थोड़ा लिखा है. क्लोरोएम्फेनिकॉल आइसोलेटेड इन 1947 इज a broad spectrum antibiotic. It is rapidly absorbed by GI, है ना, gastrointestinal tract, GI tract इसको शॉर्ट में बोलते हैं, and hence can be given orally in case of typhoid, dysentery, acute fever, certain form of urinary infection, meningitis and pneumonia. ठीक है, lot of, let's say, you can see the applications are there. तो vancomycin and afloxacin are other important broad spectrum antibiotic. तो अभी हम जो देखते हैं मोस्ट वो है ये afloxacin. ठीक है. द एंटीबायोटिक एजरीन है ना, ये क्या हो गया, डाइसिडाजरीन. Dicedazerine is supposed to be toxic towards certain strain of cancer cell. तो ये यहाँ पे इन्होंने बताया कि कैंसरस सेल के लिए ये एंटीबायोटिक है डाइसिडाजरीन. बंद कर लो, म्यूट कर लो बेटा. हाँ, ओके. पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत याद रख सकते हो कि ये 4 और 5 मेंबर रिंग है, सल्फर जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन है, सो लाइक दैट. ठीक है. देखो हर पूरा स्ट्रक्चर तो याद नहीं होगा, लेकिन अच्छी बात यह है स्ट्रक्चर्स में ना डिफरेंस है, तो थोड़ा बहुत आप हिंट याद रख सकते हो तो फिर आपको याद रहेगा. मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, क्योंकि एक आध जगह पे स्ट्रक्चर कभी कभी पूछ लिया जाता है किसी किसी फेमस का, है ना, तो आपसे सबका नहीं पूछा जाएगा, फेमस वगैरह का पूछा जा सकता है. जैसे पेनिसिलिन इज क्वाइट फेमस, so you can have some idea here over here, है ना. ये 4 मेंबर 5 मेंबर रिंग आपस में नाइट्रोजन सल्फर है, ऐसा होगा तो यही एक स्ट्रक्चर है. Now we are having antiseptic and disinfectant. एंटीसेप्टिक थोड़ा माइल्ड होता है. सेम एलिमेंट कैन, सेम कंपाउंड और सेम सॉल्यूशन कैन बी यूज्ड एज बोथ. डिसइंफेक्टेंट थोड़ा हार्ड रहता है. So antiseptics and disinfectant are also chemicals which either kill or prevent the growth of microorganisms. Antiseptics are
applied to living tissues such as wounds, cuts, ulcer, diseased skin surface. Examples are furacin, soframycin, ये आपने सुना हुआ है, soframycin, etc. These are not ingested like antibiotics, तो इनको खाना नहीं है, right? Commonly used antiseptics, Dettol. Dettol का मिक्सचर मैंने बताया था आपको, अल्कोहल में, फिनॉल में, is a mixture of chloroxylenol and terpineol. terpineol, ठीक है. So this is going to be, यहाँ पे इन्होंने ये देखा हुआ है, right? This is going to be xylene, थोड़ा आप समझ लो, है ना, ये xylene है, क्लोरीन ग्रुप है, और ये फिनॉल लगा हुआ है. So this is from there you can understand xylenol, chloroxylenol is like this. ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, टर्पाइनॉल. ठीक है, इन दोनों से फिर क्या बनेगा, डिटॉल. एनीवे, and we are having in soap, we are having thionyl. ठीक है, तो बाईथायोनॉल में थायो लगा हुआ है, इसका मतलब सल्फर लिंकेज होने वाला है. ओके, दिस कंपाउंड इज आल्सो कॉल्ड एज बायोथायोनल. ओके, इट एडेड टू सोप टू इम्पार्ट एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज. ठीक है, एनीवे, स्ट्रक्चर नहीं भी याद रहेगा तो चलेगा, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है स्ट्रक्चर. नाम याद रख लो. डिटॉल में क्या होते हैं, डिटॉल में पूछ लिया जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर प्रेजेंट इन डिटॉल, तो वहां पे याद रखना है क्लोरोजाइलिनॉल एंड ट्रिपेनॉल. नाउ नेक्स्ट इज आयोडीन. ये मुझे नहीं पता कितने लोगों ने देखा है, बट पहले के टाइम पे जब कभी चोट लग जाती थी बचपन में, तो डॉक्टर पट्टी करता था ना, तो एक वॉयलेट कलर की, आपको याद होगा, पट्टी पे वो कोई दवाई लगाता था, वॉयलेट वॉयलेट कलर की, है ना. वो कुछ नहीं होता था, आयोडीन होता था. आयोडीन इज ए पावरफुल एंटीसेप्टिक. इट्स 2 to 3% solution in alcohol water mixture is known as tincture of iodine. It is applied on wounds. Iodoform is also used as antiseptic for wounds. का क्या करेगा, ये ऑक्सीडाइज करेगा बस. ठीक है, आयोडीन क्या करेगा, बैक्टीरिया को ऑक्सीडाइज करके किल करेगा. आयोडोफॉर्म इज ऑल्सो यूज एज एंटीसेप्टिक फॉर वुंड्स. फिर लिखा हुआ है यहाँ पे बोरिक एसिड सॉल्यूशन, ये आपके आई ड्रॉप में यूज होता है. Boric acid is a dilute aqueous solution in being weak antiseptics for eyes. Now we are having talk about disinfectant. तो आपने पढ़ा होगा ओजोन, क्लोरीन, है ना, ये सब are going to use for disinfectant. स्विमिंग पूल वगैरह में ये डालते हैं ना, और घर में जो आप ये लाइजॉल वगैरह यूज कर रहे हो, वो फिर उनमें वो भी डिसइंफेक्टेंट है. और थोड़ा लोअर ग्रेड के जो आते हैं वो फिनोलिक बेस्ड डिसइंफेक्टेंट होते हैं, जो अगर आप पानी में डालोगे एकदम वाइट हो जाते हैं ना, एकदम वाइट हो जाते हैं, वो फिनोलिक बेस्ड होते हैं. तो फिनोलिक बेस्ड थोड़े हार्मफुल होते हैं. सो दैट्स व्हाई जिस घर में बच्चे वगैरह हैं छोटे छोटे, जो फर्श पे पड़ी हुई चीजें खा लेते हैं, है ना, उठा उठा के, राइट, तो वहां पे फिर वो फिनोलिक बेस्ड नहीं लगाते, वहां पे ये थोड़ा महंगे वाले डिसइंफेक्टेंट इज बेटर, राइट. एनीवे, disinfectants are applied to inanimate objects such as floors, drainage system, instruments, some substance that can act as an antiseptic as well as disinfectant by varying the concentration. For example, फिर उन्होंने एक बात बताई है कि 0.2% solution of phenol is antiseptic. ठीक है, 0.2%, ये पूछा जाएगा. 0.2% solution of phenol is antiseptic while its 1% solution is disinfectant. तो आप याद रखना, lower concentration is going to be antiseptic and higher concentration disinfectant. Now similarly, chlorine in the concentration of 0.2 to 0.4 ppm in aqueous solution and sulfur dioxide in very low concentrations are disinfectant. ठीक है. Now ये तो हो गया भाई पूरा antibiotic and antiseptic and disinfectant. Now anti-fertility drug. ठीक है, तो अब जब बीमारियां कम हो गई तो डेथ, मतलब जो रेट था वो कम हो गया लोगों की मरने का, तो फिर क्या आया, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ, है ना. और फिर उसके लिए पिच करना चालू किया गवर्नमेंट ने, फैमिली प्लानिंग, है ना. जैसे इंडिया में हम दो हमारे दो, राइट, चल रहा था बहुत टाइम तक. तो ये
गवर्नमेंट ट्राई करती है, ठीक है, ठीक है। फॉर दैट वी आर हैविंग एंटी फर्टिलिटी ड्रग. Antibiotic revolution has provided long and healthy life to people. Healthy, the life expectancy has almost doubled, and the increased population has caused many social problems in terms of food resource, environmental issue, employment, etc. To control these problems, population is required to be controlled, and this has led to concept of family planning. Anti-fertility drugs are of use of this direction. Birth control pills essentially contains a mixture of synthetic. अब ये देखो, दो आपको ये पता भी होगा शायद, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन, है ना, ये फिर से आपको याद रखना पड़ेगा. These are the two substances, estrogen and progesterone derivative. Both of these compounds are hormones. It is known as progesterone suppresses ovulation, and synthetic progesterone derivative are more potent than progesterone. मैंने बोला progesterone derivative ले रहे हैं. और फिर है nortriptyline is an example of synthetic progesterone. ठीक है, तो यहाँ पे एक नाम है ड्रग का. This is going to be nortriptyline. Example of synthetic progesterone derivative most widely used as anti-fertility drug. The estrogen derivative which is used in combination with progesterone derivative is ethinyl estradiol. ठीक है, ethinyl estradiol और novistrol. तो इनके नाम थोड़े डिफिकल्ट हैं, एक्चुअली ड्रग्स के सारे नाम ही डिफिकल्ट हैं. ethinyl estradiol and novistrol. तो ये हो गया आपका एस्ट्रोजन बेस्ड एंड दिस इज प्रोजेस्टेरोन बेस्ड. अब बात आती है कि दो गए भाई हमारे मेडिसिन. अब बात आ रही है केमिकल्स इन फूड. तो यहाँ पे मेनली हम प्रिजर्वेटिव की बात करेंगे और थोड़ा बहुत एंटी ये स्वीटिंग एजेंट की बात करेंगे. तो केमिकल्स हमें पता है वी आर यूजिंग फॉर देयर प्रिजर्वेशन, enhancing their appeal and adding nutritive value in them. Main category of food additives are as follows: food color, flavor sweetener, है ना. एक मिनट. हाँ, so fat emulsifier, stabilizing agent, flour improver, ठीक है, okay, antioxidants, preservation, ठीक है, nutritional supplements such as mineral, vitamins and amino acids. Okay, now except for the chemicals of category, none of the above additive have nutritive value. ठीक है, 7. And they are either added to they are added either to increase the shelf life of stored food or for cosmetic purpose, मतलब color वगैरह और smell के लिए. In this section we will discuss only sweetener and food preservative. हम दो की बात करेंगे, sweeteners की और food preservative. तो पहले है sweeteners. हमें पता है कि हमारी बॉडी में अगर हम सुक्रोज लेंगे, सुक्रोज इज गोइंग टू ब्रेक इनटू ग्लूकोज, और जैसे ही ग्लूकोज होगा तो फिर इसका है ना मतलब इसको डाइजेस्ट करना, ब्रेकिंग चालू होगा, राइट, व्हिच इज वी आर गोइंग टू ब्रेक ग्लूकोज, ठीक है, इनटू CO2 एंड ऑल दोस थिंग्स, ठीक है, H2O. तो ये है पूरा डाइजेशन, और इस प्रोसेस में एनर्जी वगैरह जो मिल रही है वो हमें ग्लूकोज के थ्रू मिल रही है. द प्रॉब्लम इज इन सब चीजों के लिए जरूरी है इंसुलिन बॉडी में, है ना, और जिनको डायबिटीज वगैरह होती है उनके लिए इंसुलिन अपनी बॉडी में बनना बंद हो जाता है, तो उन्हें बाहर से एक्स्ट्रा शॉट्स लेने पड़ते हैं, ठीक है. तो आपने देखा होगा किसी को अगर डायबिटीज होगी तो उनको अलग से इंजेक्शन देते हैं, है ना, पेट में देते हैं सीधे इंसुलिन के इंजेक्शन. तो बहुत डिफिकल्ट है जब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो. तो ये तो है सुक्रोज के लिए. अब मान लो अगर हम ऐसा एजेंट डालें जो ब्रेक ही ना हो ग्लूकोज में, है ना, मतलब जो आपको टेस्ट में तो मीठा लगे लेकिन वो आपको ब्रेक ना हो ग्लूकोज वगैरह में, तो डाइजेशन का प्रॉब्लम ना है ना, इस पूरी साइकिल का,
और अपनी बॉडी में ऐसे ही बस बाहर निकल जाए, है ना, बस टेस्ट का काम दे। तो ये आ गए आपके आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स। ठीक है, तो मैनी, अब यहाँ पे लिखा है सुक्रोज एड टू कैलोरी इनटेक एंड देयरफॉर मैनी पीपल प्रिफर टू यूज आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। अब उनमें दे रखा है ऑर्थो सल्फो बेंजीमाइड, है ना, तो ये आपका आर ऑल्सो कॉल्ड एज सेक्रिन। देखो सेक्रिन यहाँ पे स्ट्रक्चर। तो आप अगर इसमें थोड़ा सा ध्यान दोगे तो ऑर्थो लिखा हुआ है एंड सल्फो, और फिर ये सल्फो के साथ साथ बेंजीमाइड दिख रखा है ना। माइड, माइड का मतलब है दो बार ये जुड़ा हुआ है, इमीन, है ना, दो दो जगह ये अमाइड लिंकेज है। तो ये हो गया आपका बेंजीमाइड and this is going to be sulfobenzimide group. This is going to be saccharin, बहुत फेमस है saccharin, पहले भी आपने सुना होगा। Okay. It is first popular artificial sweetening agent. It has been used in used as sweetening agent ever since it was discovered in 1879. It is about 550 times as sweet as cane sugar. And it is beauty ये है कि देखो it is excreted from the body in यूरिन अनचेंज, है ना, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है डाइजेशन का, इन सब का, सीधे बस ऐसे बॉडी से निकल गया। इट अपीयर्स टू बी एंटायरली इनर्ट, हार्मलेस व्हेन टेकन। इट इज its use is to great value to diabetic person and the people who need to control intake of calories. Some other commonly marketed artificial sweeteners are given. अब यहाँ पे थोड़ा सा इस पे क्वेश्चन पूछा गया था इन सब पे, तो अभी मैं बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा आपको याद रखना है। ठीक है, तो आप अगर इसको तोड़ दोगे यहाँ पे, है ना, इसको यहाँ से तोड़ दोगे, राइट, तो ये दो आपके, है ना, दो पार्ट हो गए, ये दोनों अमाइनो एसिड है। ठीक है, अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, जिनके एक ही कार्बन पे COOH और NH2 ग्रुप जुड़ा होता है। तो जैसे ये ग्लाइसिन हो गया, ठीक है, अमाइनो। अब इसमें एक हाइड्रोजन हटा के हमने क्या जोड़ दिया यहाँ पे, CH2COOH। इसको बोलते हैं एस्पार्टिक एसिड। ये हमारे किसमें आएगा, ये जैसे हम देखेंगे कि इसमें बायोमोलिक्यूल में। तो एस्पार्टिक एसिड पार्ट क्या हुआ, आपको समझ में आया, अल्फा अमाइनो एसिड, है ना, अल्फा अमाइनो एसिड, सॉरी, एक ही कार्बन पे दोनों जुड़े हुए हैं, उनको बोलते हैं अल्फा अमाइनो एसिड, और यहाँ CH2COOH लिखा हुआ है। तो याद करना आसान है, फिर से मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, राइट, आई एम ब्रेकिंग इट। तो ये दो पार्ट में टूट रहा है एस्पार्टम में। दिस इज गोइंग टू बी, पहला है CH, यहाँ पे COOH NH2। अगर CH2 होता है तो बोलते हैं ग्लाइसिन, ग्लाइसिनेटो, आपने पढ़ा होगा किसमें, आपने पढ़ा होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, ग्लाइसिनेटो, Gl बाई एज ए लिगेंड, पढ़ा था। हाँ सर, वो CO और NH2 दोनों। हाँ, तो ये हो गया, ठीक है, ये आपका बाइडेंटेड है, और ये बाइडेंटेड ऐसा है कि इसमें दोनों डोनर एटम अलग अलग है। ठीक है, AB टाइप, MAB टाइप, आपने AA टाइप पढ़े होंगे, राइट, AB टाइप है स्पेशलिटी ग्लाइसिनेटो। तो ये ग्लाइसिन होता है। एस्पार्टेम पे क्वेश्चन आया था, इस पे MS1 में था। हाँ हाँ, बता तो रहा हूँ मैं, ये इस पे पूछा है भाई क्वेश्चन, स्ट्रक्चर पे पूछा है, समझ रहे हो। तो ये तो होगा ग्लाइसिन, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे एक हाइड्रोजन हटा के क्या जोड़ा हमने, CH2COOH। इसको बोलते हैं एसिडिक अमाइनो एसिड। तो अमाइनो एसिड्स न्यूट्रल होते हैं, क्यों, क्योंकि एक बेसिक और एसिडिक ग्रुप है, लेकिन जिनपे एक एक्स्ट्रा एसिडिक ग्रुप आ जाता है उनको बोलते हैं एसिडिक अमाइनो एसिड। तो उसमें एक है, उसको बोलेंगे एस्पार्टिक एसिड, है ना, ये क्या हो गया, इसका नाम हो गया एस्पार्टिक। अब आप यहाँ ध्यान से देखो, ये हमने ब्रेक कर दिया तो यहाँ पे भी NH2 बन गया, और यहाँ पे ये आपका CH2, राइट, एंड ये आपका क्या है, COOH वाला पार्ट है ना। इसको अभी हम यहाँ पे एस्टर लिखा हुआ है, इसको भी छोड़ देते हैं, यहाँ पे H लगा दो। तो अगर मान लो CH-COOH है ना, ये NH2, और यहाँ पे CH3 होता है, तो उसको बोलते हैं एलेनाइन। क्या बोलते हैं, एलेनाइन, आगे देखेंगे ये। तो केवल हाइड्रोजन है तो ग्लाइसिन, यहाँ पे CH3 लगा हुआ है तो एलेनाइन,
और इस एलेनाइन पे CH2PH लगा है तो फिनाइल एलेनाइन। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले अमाइनो एसिड मैंने CH2COOH लगाया, CH2COOH NH2 तो ग्लाइसिन। अगर H हटा के CH3 लगाया तो एलेनाइन। उस एलेनाइन में अगर CH2PH लगा दिया तो फिनाइल एलेनाइन। ठीक है, एस्पार्टिक एसिड के लिए अलग से CH2COOH लगा दें। अब इसका एस्टर बना रहे हैं तो ये हो गया मिथाइल एस्टर। So this is two parts, aspartic acid part and phenylalanine methyl ester part, and it is 100 times sweeter than sucrose. Saccharine का स्ट्रक्चर आपको याद रहेगा, है ना, सल्फोबेंजीमाइड। चलते हैं सुक्रोलोज इज सिमिलर टू सुक्रोज। अगर ये हम देखेंगे, अभी हम सुक्रोज का स्ट्रक्चर हमने अगेन बायोमोलिक्यूल में देखेंगे। सुक्रोज इज नथिंग बट ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। अगर आप ध्यान से देखो तो ये ग्लूकोज स्ट्रक्चर लगा हुआ है और ग्लूकोज का ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है एक्चुअली में। ठीक है, ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर है। कैसे ग्लूकोज ऐसा होता है, आई थिंक एवरीवन इज फेमिलियर विद दिस स्ट्रक्चर। ठीक है, फिर क्या होता है, ये वाला OH अगर इस वाले के साथ बॉन्ड बना लेगा, है ना, ये क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड आई एम सेइंग कार्बोनिल एंड OH, ROH की रिएक्शन, तो क्या बनता है आपका एसिटल लिंकेज बन सकता है। सो दिस इज गोइंग टू अटैच हियर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ऐसा कुछ हो जाएगा। So this is going to be like this, oxygen here, OH, 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 CH2OH. Now if you are going to do the numbering, let's say 1, 2, 3, 4, 5 and 6. This is oxygen. So 6-membered ring बनेगी आपकी। And now according to orientation we are going to put OH. तो जो जिन पे राइट हैंड साइड OH है वहां नीचे लिख लेते हैं OH, सेकंड पे भी OH नीचे, थर्ड पे OH ऊपर, फोर्थ पे OH नीचे, एंड फिफ्थ के साथ ये CH2OH है तो इसको ऊपर लिख लेते हैं। तो ऐसा ये कुछ स्ट्रक्चर बन गया, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ऐसे ये फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है। बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है, सुक्रोलोज में वी आर हैविंग ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव, तो हमने क्या किया है, यहाँ पे 3 OH हटा के Cl लगा दिया है। सो दिस इज सुक्रोलोज। तो आपको याद क्या रखना है, ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ सुक्रोज स्ट्रक्चर। Now this is going to be, let's say, sweeter than saccharine 600 times. And next है एलिटमे। एलिटमे और स्पार्टमे के नाम सेम है ना। स्पार्टमे इन सब में लीस्ट, let's say you are going to say sweet, and एलिटमे is going to be most sweet, है ना, ये याद रखना है एलिटमे। एलिटमे स्ट्रक्चर भी अगर ध्यान से देखें, so this is nothing but ये फिर से आपका हो गया aspartic acid part, तो CH2COOH, CH, NH2, COOH। ठीक है, ये और ये आपका हो गया NH2CH एलेनाइन पार्ट। ठीक है, यहाँ CH3CH, वहां पे फिनाइल एलेनाइन था, राइट, तो CH2PH था, यहाँ पे ये CH3CH NH2 COOH है। So you are getting aspartic acid, you are getting alanine इसमें। ठीक है, anyway this is another, let's say, okay, ये कोई अमाइनो एसिड नहीं है, नॉर्मल कंपाउंड है। So you can see this is going to be a cyclic thioether which is having NH2 group. Okay, अब समझते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो दोनों सिमिलर हैं, एस्पार्टिक एसिड और ये एलानाइन से बन रहे हैं, वहां पे फिनाइल एलानाइन है, तो दैट इज एस्पार्टमे एंड इट इज 100 टाइम्स स्वीटर देन शुगर, और एलिटमे इज 2000 टाइम्स। अगर 2000 टाइम्स स्वीटर है तो प्रॉब्लम क्या है कि स्वीटनेस को कंट्रोल करना डिफिकल्ट है। ठीक है, और यही एक एडवांटेज एस्पार्टमे में आ जाएगा, क्योंकि
वहां स्वीटनेस आप कंपैरिजन टू एलिटा में आसानी से कंट्रोल कर सकते हो। या तो एकदम से मीठा हो जाएगा, ये है ना, राइट, 2000 टाइम्स। तो ये लिखा हुआ है एस्पार्टमे इज द मोस्ट सक्सेसफुल एंड वाइडली यूज्ड आर्टिफिशियल स्वीटनर, है ना। इट इज रफली 100 टाइम्स स्वीट एज केन शुगर। इट इज मिथाइल एस्टर ऑफ डाइपेप्टाइड, मिथाइल एस्टर ऑफ डाइपेप्टाइड फॉर्म फ्रॉम aspartic acid and phenylalanine. Use of aspartame is limited to cold foods and soft drinks because it is unstable at cooking temperature. Cooking temperature का मतलब क्या है, ये ब्रेक हो जाएगा, ये पेप्टाइड बॉन्ड्स ब्रेक हो सकते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट हाई टेम्परेचर पे एक्चुअली में यू कैन नॉट लेट्स से कोट इट, तो फिर वो स्वीटनेस की जगह कुछ और हो जाएगा। Elitame is high potency sweetener, although it is more stable than aspartame. The control of sweetness of food is difficult while using it. Okay. Sucralose is trichloro derivative of sucrose. It appearance and taste like sugar. It is stable at cooking temperature. It does not provide calories. ठीक है, तो ये सब बातें हमने देख ली। ये 100 टाइम्स कौन सी यूनिट है, शुगर के कंपैरिजन में है, with respect to sugar. Sweetness value in comparison to cane sugar. हेलो, सर आपने 100 टाइम्स क्या रेफरेंस क्या है? रेफरेंस मेरे हिसाब से मास होगा, है ना। तो अगर आपने 1 ग्राम ये डाला और आपने 100 ग्राम शुगर डाला, सेम चीज है। एक्चुअली टेस्ट के भी रेफरेंसेस होते हैं, वो हम मतलब उसके लिए हाउ वी आर मेजरिंग इज आर्टिफिशियल, हम उनको बोलते हैं टंग्स एंड आर्टिफिशियल नोजेस स्मेल के लिए, तो वो बताते हैं कि भाई सेंसिटिविटी के हिसाब से कि कौन कितना स्वीट है, कितना, राइट। और फिर ये शुगर फ्री क्या होता है मतलब? शुगर फ्री का मतलब है उसमें शुगर नहीं है, बाकी वो मीठे इन्हीं में से कोई कुछ रहेगा। ये तो शुरुआत के हैं ना, अब तो और मॉडिफाइड और अच्छे आ चुके हैं मार्केट में, तो ये भी हो सकते हैं इनमें से, या इनका कोई डेरिवेटिव हो सकता है, राइट। नाउ नेक्स्ट, फूड प्रिजर्वेटिव। फूड प्रिजर्वेटिव प्रिवेंट्स स्पॉइलेज ऑफ फूड ड्यू टू माइक्रोबियल ग्रोथ। हमें पता है फूड को ओपन रख दोगे तो वो खराब हो जाएगा, है ना। So the most commonly used preservative include table salt. आपको salt का एग्जांपल पता होगा कि पहले के जमाने में लोग अगर मान लो एक बड़ी जर्नी पे जाते थे, है ना, जिसको बोलते हैं सी वॉयज टाइप, है ना, कहीं बाहर जा रहे हैं, तो वो क्या करते थे, फूड मेनली मीट को सॉल्ट लगा के प्रिजर्व करते थे। तो आई थिंक जो लोग नॉन वेजिटेरियन है वो ये बात से रिलेट जल्दी कर पाएंगे कि सॉल्ट इज गोइंग टू बी ए लाइक प्रिजर्वेटिव यूज्ड फ्रॉम वेरी लॉन्ग टाइम, टेबल सॉल्ट। शुगर, वेजिटेबल ऑयल्स, पिकल विकल में हमने देखा है ऑयल्स डालते हैं, है ना, जस्ट फॉर प्रिजर्वेटिव। सोडियम बेंजोएट, है ना, ये is used in limited quantity and is metabolized in the body. Salt of sorbic acid and propanoic acid are also used as preservative. एक मिनट, ठीक है। There are two more, let's say, food preservative which are famous. One is called BHA and BHT, and this is nothing but butylated, शॉर्ट फॉर्म ही इनकी आती है, butylated hydroxy एनिसोल। ठीक है, एनिसोल में कौन सा ग्रुप होता है, OCH3 ग्रुप, ठीक है। एंड BHT इज butylated
हाइड्रोक्सी टोलुइन, ठीक है। These are also used as food preservative, BHA and BHT, ये थोड़ा और commonly use होते हैं, right? BHA and BHT. ठीक है, चलते हैं आगे। Now, cleaning agent. In this section, we will learn about detergents. Two types of detergents are used as cleaning agent. These are soap, synthetic detergents. The improved cleaning properties of water. These help in removal of fats, which binds with other materials to fabric or skin. Now, हमें ये बात पता है कि ये जो फैट्स होते हैं वो ग्लिसराइल एस्टर्स हैं, इनकी हाइड्रोलिसिस होगी बेसिक मीडियम में, जैसे एस्टर हाइड्रोलिसिस होती है नॉर्मली, तो हमें क्या मिलेगा, ग्लिसरॉल मिल जाएगा और ये सोप मिल जाएगा, going to be soap. So that is called saponification reaction. So okay, तो ये याद रखना है, जो भी फैट्स हैं उनका अगर हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे बेसिक मीडियम में तो हमें सोप मिल जाएगा। Soaps are detergent used since long. Soaps used for cleaning purpose. सोडियम वाले थोड़े हार्ड होते हैं, पोटेशियम के थोड़े सॉफ्ट होते हैं। For long chain fatty acids, example stearic, oleic and palmitic acid. Soaps containing sodium, let's say salts, are formed by heating fat. Fats are glyceryl ester of fatty acids. With aqueous sodium hydroxide solution, this reaction is called as saponification reaction. ठीक है, याद रखना ये ग्रुप कौन से, C17H35, ठीक है। स्टेरिक एसिड में C17H35 होता है, ओलिक एसिड में C17H33 होता है। So, you know, एक आई थिंक एक पाई बॉन्ड आप समझ सकते हो कि इसमें आ गया है ना, ओलिक एसिड में अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड, यस, इसमें आ गया। ओलिन से याद रख लेना, ओलिक एसिड यहाँ पे आ गया, राइट। नाउ in this reaction, esters of fatty acids are hydrolyzed. The soap obtained remain in colloidal form. It is precipitated from the solution by adding sodium chloride. ये क्या करेगा, कॉमन आयन देगा, कॉमन आयन, ठीक है। तो जो ये यहाँ पे आपके सॉल्ट बने हैं सोडियम के, वो इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम आयन क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट होने लग जाएगा, कॉमन आयन इफेक्ट लिया। Solution left after removing the soap contains glycerol, which can be recovered by fractional distillation. Only sodium and potassium soaps are soluble in water and are used for cleaning purpose. तो यहाँ पे ये देख लो, right? So we are not using any other sodium and potassium only. Generally, potassium soaps are soft to skin than sodium soaps, and this can be prepared by using potassium hydroxide solution in place of sodium hydroxide. टाइप्स ऑफ सोप ये बहुत कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट, कि किसमें स्मेल आती है, क्या है, कौन लॉन्ड्री सोप है, तो आई एम जस्ट स्किपिंग दिस पार्ट। व्हाई डू सोप नॉट वर्क इन हार्ड वाटर, क्यों, क्योंकि ये जो सोप है सोडियम सॉल्ट, दैट इज गोइंग टू फॉर्म ए कैल्शियम, लेट्स से सॉल्ट, और ये कैल्शियम सॉल्ट क्या है, एक्चुअली में गमी मास बनाता है, मतलब इनसॉल्युबल कैल्शियम स्टेरेट, तो ये डिपॉजिट हो जाता है, राइट। सो सोप एक्शन आपको थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ। तो ये एक लंबी हाइड्रोकार्बन चेन है और यहाँ पे ONA ऐसे, COO ऐसे, right? So this whole hydrocarbon chain is going to be attracted towards grease and let's say oil something, जो भी ऑयल के पार्टिकल हैं उनकी तरफ ये हाइड्रोकार्बन चेन अट्रैक्ट होगी, और ये नेगेटिव पार्ट जो है वो वाटर की तरफ अट्रैक्ट रहेगा। तो जहां कहीं पे भी जैसे मान लो ग्रीस वगैरह है, वहां पे क्या होता है, एसोसिएट कोलाइड्स बनते हैं, मतलब ऐसे करके ये हाइड्रोकार्बन चेन और इनकी, या फिर आप बोल सकते हो इनका नॉन पोलर पार्ट जाके उस ग्रीस पे ऐसे अटैच हो जाता है, ठीक है, उस पे चिपक जाता है, मतलब
उसको अट्रैक्ट करने लग जाएगा, और ये पानी है O-Na। तो जब आप थोड़ा बहुत इसे घिसोगे वगैरह करोगे, राइट, थोड़ा सा मोशन दोगे इन सब में, तो क्या होगा, ये पानी के थ्रू ये खींच के लेके जाएगा, है ना, ये इसको, तो ये निकल जाता है, ऐसे क्लीनिंग एक्शन इसको बोलते हैं। अब क्या है कि ये अगर ये रहा नहीं है ना, और ये खुद में ही प्रेसिपिटेट बना लिया, सॉल्युबल नहीं रहा, सोडियम तो सॉल्युबल है ना पानी में ऐसे, अब ये क्या हुआ, इनसॉल्युबल हो गया, तो फिर क्या होगा, पूरा का पूरा आपके क्लॉथ पे ही चिपक जाएगा, है ना, ये गमी मास। तो आपने देखा होगा जब कभी इम्प्रॉपर क्लीनिंग होती है आपकी, अगर मान लो वॉशिंग मशीन को क्लीन करना होता है ना, बोलते हैं 6 मंथ में कर लो या 1 साल में उसको पूरा क्लीन कर दो, राइट। तो कभी कभी उसमें क्या होता है कि जो खुद में जो आपने ये डिटर्जेंट वगैरह डाला हुआ है, ये चिपका रहता है उसकी खुद की वॉल्स पे, तो क्लीनिंग जब नहीं होती है प्रॉपर, वो गमी मास जाके तुम्हारे कपड़ों पे चिपक जाता है, तो आपने देखा होगा, है ना, अनक्लीनिंग एक्शन वहां देखा होगा, राइट। या फिर कभी कभी हार्ड वाटर आ रहा है, जैसे जैसे मुंबई में तो नहीं है हार्ड वाटर, लेकिन कई और जगह पे हार्ड वाटर का फीलिंग, आई थिंक तुम तो बाहर से, घर से बाहर निकले नहीं होगे, तुम्हें पता भी नहीं होगा, छोड़ो, ये तो हार्ड वाटर रहेगा तो क्लीनिंग एक्शन नहीं होगा एनीवे। Insoluble soap separate as come in water and are useless as cleaning agent. In fact, these are hindrance to good washing, and because of the precipitate adhered to fibers of cloth as gummy mass. ठीक है, hair washed with hard water looks dull because of this sticky precipitate. Dyes do not absorb evenly on clothes washed with soap using hard water because of this gummy mass. छोड़ो, next, ये डाइज डज नॉट एब्जॉर्ब इवनली का मतलब क्या है, जब आप कलरिंग करने जाओगे तो कहीं कहीं पे ये चिपका रह जाएगा, तो वहां पे कलरिंग अच्छी नहीं होगी एनीवे। अब बात आ रही है सिंथेटिक डिटर्जेंट की, इसमें 3 तरह के डिटर्जेंट हैं, एनायनिक, एनायनिक एंड न्यूट्रल। एनायनिक का मतलब है एनायनिक ग्रुप हो, कैटायनिक का मतलब है कैटायनिक ग्रुप हो, NH4+ टाइप, और न्यूट्रल मतलब न्यूट्रल ग्रुप्स हैं, OH टाइप, तो ये याद रखना है, ठीक है। So synthetic detergents are cleaning agents which have all the properties of soaps, which actually do not contain any soap. These can be used in both soft and hard water. They give foam even in hot water. Some of the detergent give foam even in ice cold water. ठीक है, तो आगे चलते हैं। Synthetic detergents are mainly classified into 3 categories: anionic, ionic, and non-ionic. So anionic detergents, SO3H ग्रुप, है ना, ये आपने कोई एसिड लिया, इसका सॉल्ट बना लिया NaOH के साथ, तो ये बन गया डिटर्जेंट, ठीक है ना। हाउ वी आर गेटिंग, तो इन्होंने थोड़ा बताया है कि कैसे कर सकते हैं। लॉरेल अल्कोहल लिया और इसका सल्फोनेशन कराया, मतलब H2SO4 से रिएक्शन कराई, तो सल्फेट बन गया। तो ROH की अगर H2SO4 से रिएक्शन होती है अराउंड 100 डिग्री सेल्सियस, नॉट 140, नॉट 170, है ना, हमने हाई पे नहीं, हाई पे जाएगा तो यहाँ एल्कीन बनती है, राइट, और यहाँ पे क्या बनता है, ईथर बनता है। 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा तो ROSO3H बनता है, सल्फोनेट, तो ये बन गया आपका हाइड्रोजन सल्फेट। सिमिलरली यहाँ पे इन्होंने बेंजीन है तो सल्फोनेशन करा लिया, ये यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फेट मतलब SO3H ग्रुप आ गया यहाँ पे। Now you can just replace this H with Na, so this is going to be Na. Okay. Anionic detergents. Anionic part of molecule is involved in cleaning action, sodium salt of alkyl benzene sulfonates are important class of anionic detergent, ठीक है। These are mostly used for household work. Anionic detergents are also used in toothpaste. चलो बस ये याद रखना है एनायनिक कौन सा है, कैटायनिक कौन सा। हाँ, ग्लिसरीन और ग्लिसरॉल सेम ही होता है, ठीक है। नाउ कैटायनिक डिटर्जेंट्स आर गोइंग टू हैव क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, तो NH4+, जैसे मैंने बताया था याद रखने के लिए, तो ये NR4+। क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट ऑफ माइंस विद एसिटेट, क्लोराइड्स एंड ब्रोमाइड्स एज एनाइन, तो ये सॉल्ट हो गया NH4Cl टाइप, NH4Br, NH4 एसिटेट, NH4OCOCH3,
Right. Cationic part possesses long hydrocarbon chain, a positive charge on nitrogen atom, hence these are called cationic detergent. Cetyl trimethyl ammonium bromide is a popular cationic detergent used in hair conditioner. Expensive हो गया ये, है ना? Cationic detergent has germicidal properties and are expensive, and therefore there are of limited use. Non-ionic डिटर्जेंट, नॉन आयनिक डिटर्जेंट में मैंने आपको बताया था कि कोई भी यहाँ पे आयन नहीं बनेगा. सो दिस इज नॉन आयनिक डिटर्जेंट डू नॉट कंटेन एनी आयन देयर कॉन्स्टिट्यूशन. वन सच डिटर्जेंट इज फॉर्म्ड विद स्टेरिक एसिड इज रिएक्ट विद पॉलीइथाइलीन ग्लाइकॉल. तो इनकी आपस में रिएक्शन हुई तो एस्टर बन गया ये. ठीक है, ये सॉरी ये रहा एस्टर लिंकेज. राइट, COOH और यहाँ से OH. लिक्विड डिश वॉशिंग है ना, डिटर्जेंट्स आर नॉन आयनेटिक. बिम विम आप देख रहे हो वैसे कुछ हो सकते हैं डिश वॉशिंग डिटर्जेंट. Mechanism of cleaning action of this type of detergent is same as that of soap. These also remove grease, oil by micelle formation. Main problem that appears in the use of detergent is if their hydrocarbon chain is highly branched. इस पे क्वेश्चन पूछा गया था, इम्पोर्टेंट है. जो ब्रांचिंग, जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी उतना वो डिफिकल्ट होता है बायोडिग्रेडेशन के लिए. तो पूछा जाता है हाइड्रोकार्बन चेन अगर हाईली ब्रांच्ड है तो वो बायोडिग्रेड डिफिकल्ट होगा, तो लीनियर वाले ज्यादा बेटर होते हैं, है ना. देन बैक्टीरिया कैन नॉट डिग्रेड easily. Slow degradation of detergent leads their accumulation. Effluent contains such detergent reach the rivers, ponds, etc., and these persist in water even after sewage treatment. And these cause foaming in river. ये तुमने कई बार देखा होगा न्यूज में, है ना. अभी लास्ट ईयर की बात है, लास्ट ईयर छठ पूजा होती है बिहार में, तो वहां पे जब लोग दिल्ली में जो लोग बिहारी लोग थे वो गए यमुना में छठ पूजा करने, तो वहां पे बिल्कुल फोम हो रखा था, है ना. पीछे यमुना में फोम प्रोडक्शन, ऐसा लग रहा था जैसे क्लाउड्स में वो लोग, है ना, बैठ के पूजा कर रहे हैं. तो ये बहुत हार्मफुल है, कॉज फोम. और आपने देखा होगा बेंगलोर के कुछ लेक्स के जब फोटो आए थे बीच में, तो उसमें भी ऐसे फोमिंग दिखाया था कि हो रहा है. सो यू कैन अंडरस्टैंड ऑल this detergent which is not going to degrade, then it is going to accumulate and is going to cause smell, foams, all those in river, pond, जो भी है उनमें streams, and their water gets polluted. These days the branching of hydrocarbon chain is controlled and kept to minimum. Unbranched chain are biodegradable more easily and hence pollution is prevented. तो वी आर ट्राइंग अगेन, ये इतना आसानी से डिग्रेड नहीं होगा, लेकिन फिर भी वी वांट कि यार ब्रांच से ज्यादा बेटर है लीनियर वाले अनब्रांच्ड लोग, राइट. तो ये हो गया हमारा ये चैप्टर खत्म. ठीक है, डन. अब इसके बाद लेंगे ब्रेक के बाद स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ खत्म, पॉलीमर खत्म, बायोमोलिक्यूल. ओके, किसी को कुछ पूछना है, कुछ कहना है? इसमें बस आप समरी बनाओ इसकी, है ना. नाम याद रखने पड़ेंगे, बहुत सारे हैं, बहुत सारे नाम हैं. और मैंने तो 2-4 बार चैट में लिखा मैंने सर. क्या लिखा है बताओ, बोल दो यार. सर बीच बीच में नेटवर्क खराब हो जाता है. सर ये बोलना था सर, हाँ, जो डिटर्जेंट वाटर होता है अगर वो डाइल्यूट फॉर्म में है, मतलब ज्यादा डिटर्जेंट नहीं है उसमें, तो हम प्लांट्स को दे सकते हैं क्या? यार एक्चुअली वो प्लांट्स को दे तो सकते हो, बट अगेन है कि बहुत ज्यादा अगर होगा तो वो दिक्कत कर सकता है. उसमें भी केमिकल्स है ना, डिटर्जेंट क्या है, केमिकल ही तो है. मतलब सर एकदम केमिकल डाइल्यूट फॉर्म में है, मतलब बहुत कम परसेंट का डिटर्जेंट है उसमें. अब हाँ, बायोमोलिक्यूल लास्ट चैप्टर है, आप दे तो सकते हो, बहुत लोग देते भी हैं, कई लोग, मतलब मैंने देखा हुआ है
अगर आप गाँव में जाओगे तो उनके, लेकिन वो लोग इतना डिटर्जेंट यूज करते नहीं है, वो लोग बहुत कम यूज करते हैं, है ना। उनके घर का जैसे मान लो बाथरूम का जो पानी है वो उनके गाँव में अगर आप जाओगे, मतलब लिटरली गाँव बोल रहा हूँ जहाँ पे खेती वेती भी हो रही है, तो उनका एक गार्डन होता है जिनमें वो छोटी मोटी सब्जियां उगा लेते हैं, बड़े बड़े घर होते हैं। मतलब मैं अपने मेरे को अपना याद है कि मेरी जो दादी जहाँ रहती हैं वहाँ पे यही है, तो वहाँ जो पानी होता है वो वहीं जाता है, उसमें छोटी मोटी सब्जियां वगैरह उग जाती हैं, घर में ही रहता है वो, थोड़ा सा गार्डन टाइप का। तो आई थिंक की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा कुछ रहेगा तो दिक्कत होगा। तुम क्या उगा रहे हो क्या? हैं? हेलो? हाँ, चलो तो हम मैसेज कर देना, तुम्हारी आवाज ही नहीं आती। ठीक है, चलो फिर ये तो हो गया ये वाला चैप्टर। आई होप कि आपको समझ में आया हो, है ना। इसमें नाम बहुत डिफिकल्ट है, और अगर लिटरली अगर मैं आपको बोलूंगा खुद से पढ़ने को तो आप सो जाओगे, है ना। सो जब भी आपको रिवीजन करना हो, ये फिर से लेक्चर नोट्स देख लेना, यही बुक, है ना, चला के वीडियो, तो आपको आराम से हो जाएगा। थैंक यू बेटा, थैंक यू डॉली, थैंक यू ऑल। हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू बेटा, थैंक यू। तो ठीक है, तो यहाँ से पहले लेते हैं ब्रेक, है ना। इस ब्रेक के बाद पढ़ाते हैं, ये मैं कैम पार्ट 2 करके कर दूंगा शेयर, ठीक है।